Dear friends, I welcome you again on my YouTube channel. And today we are going to discuss the most important poem, um, The Relic by John Donne. Sometimes students might be thinking, like I always say, that the most important poem to every single poem written by any writer. Um, the case is so that whenever I touch upon any poem, I find that this or that particular poem is anthologized throughout the world in the courses of English literature, wherever they are taught in honors or say pass course or post graduation, or even in school level also. So friends, let me remind you that we have been studying John Donne, who is a metaphysical poet. Now, there is no need to introduce again what is a metaphysical poetry. You all know that wherever a writer tries to surprise us, or a writer who writes by comparing two dissimilar things, uh, with his force or with his imagination, which we call metaphysical conceit. And then there is abrupt starting, then there is a lot much surprise for the poet, a lot much tension in the poem. Tension here, I'm using this word in a figurative language. Tension means there are many paradoxes in the poem. Whatever the poet says in the beginning, you will find that he's contradicting himself in the fourth line, or say at the end of the stanza, or at the end of the poem. So paradoxes, a lot much literary terms, a lot much introduction of Renaissance elements, which were new in those ages. For example, the examples from the pair of compasses from geometry, or any knowledge, whatever the writer has come across, and he wants to surprise. All of my students should know that John Donne always tried to write these poems to circulate among his friends. And these poems were published after his death in 1631. So one more thing, that this writer is very typical, and he's called the ace of the acme of the highest pinnacle of this metaphysical poetry. And he is also called a person, a poet who has influenced the modern writer like T.S. Eliot. ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि T.S. Eliot की जो पॉपुलैरिटी थी, वो उसकी एज में पोइट्री को लेकर कम थी, और बीइंग अ डीन, बीइंग अ प्रीस्ट, बीइंग अ sermon preacher, he became famous. Clear? So because he's also known for leading a very bohemian life. ये जो bohemian word है, BOHEMIAN, bohemian एक word है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है हिप्पी की तरह रहना, कल्चर को नहीं मानना, मोरालिटीज को नहीं मानना, बहुत ज्यादा ओपन सेक्सुअलिटी रखना. Okay, but you know that in the very beginning of his life, in his youth, he married Anne Donne. भाग के इन्होंने शादी की, जबकि वो मतलब अभी एक माइनर थी. माइनर का मतलब होता है उनकी एज भी शादी लायक नहीं थी, 18 साल की थी वो, से भी कम थी. और फिर जब इनकी शादी इन्होंने कर ली भाग करके, तो इनके जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ, उन्होंने इनको दौरी नहीं दी, तो इनको बहुत बुरे दिन भी देखने पड़े. कम खर्चे में इनका मतलब पैसे में खर्च चला घर का. और 13 बच्चे इनकी, मतलब इन्होंने शादी के 13 साल 14 साल में 13 बच्चे पैदा किए. और इनकी वाइफ जो है लास्ट में बच्चे पैदा करते करते काफी बीमार होकर के मर गई. अब इसको हंसी में नहीं लेना है, इससे पता चलता है कि हाउ वर्ल्डली, हाउ दैट पर्सन वाज डिवोटेड टू, or say involved and indulged in the carnal pleasure. But later on he became a philosopher kind of person, and he wrote sermons, and he became too much religious. Too much, I'm using the word because अब जब हम उनके रिलीजन की चीजें पढ़ते हैं, it means overnight a person does not become religious. Actually his reading has some touch in his poems, so we can say that there is a lot much elements, a lot much a lot many elements in his poems, जिसमें रिलीजन को लेकर के भी आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी. ठीक है.
तो अभी मैं पोएम समझा रहा हूँ, द रेलिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड, इफ यू फाइंड दिस स्पेलिंग in many of the books of poetry, the spelling is RELIQUE. ओके, एक आर्केइक टच यानी पुराना टच देने की कोशिश स्पेलिंग में कई जगह की गई है, लेकिन एक्चुअल स्पेलिंग रेलिक ही होती है. अब रेलिक का मतलब होता है कोई पुराना आर्कियोलॉजिकल अवशेष. जैसे आज से 5000 साल पहले का कोई हमें मिट्टी का मटका मिले, जिसके टुकड़े भी मिले, कोई सिक्का मिले, कोई भी चीज मिले, मूर्ति मिले, कोई गहना मिले, तो हम उसको संभाल के म्यूजियम में रखते हैं. ओके, सो इस पोएम में आपको ये सब चीजें नजर आएंगी. पोएम की शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म से हो रही है, जिसको प्रोलेप्सिस बोलते हैं बच्चों. PROLEPI, LEPSIS, प्रोलेप्सिस. प्रोलेप्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे हैमलेट एक शेक्सपियर का प्ले है, जिसमें एक लाइन आती है, होरेशियो आई एम डेड. तो जिंदा आदमी अपने फ्यूचर की बात कर रहा है. इन द सेम सेंस इस पोएम की शुरुआत देखिए, हिंदी में मैं समझा रहा हूं. When my grave is broke up again, फिर से एब्रप्ट स्टार्टिंग हो गई है, बिना कोई भूमिका बांधे कवि स्टार्ट कर रहा है कि जब मेरी कब्र को तोड़ा जाएगा. अब पहली बात तो कि ये कब्र को तोड़ना एक ब्लास्फेमी यानी कि धर्म के विरुद्ध माना जाता है. मोस्टली कब्र को छेड़ा नहीं जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन और इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि कब्र में जब हम किसी को बैरी करते हैं, गाड़ते हैं, तो कयामत के दिन ही वो उठता है. ठीक है, इसका मतलब है कि किसी को डिस्टर्ब करना वो. तो आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट लाइन इज, काफी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मेरी ग्रेव को तोड़ा जाएगा फिर से. इसका मतलब है प्रोलेप्सिस है यहाँ पे. प्रोलेप्सिस लिटरेरी टर्म है, इसका मतलब है फ्यूचर की बात कर रहा है कवि, जबकि वो काम पता नहीं कब होगा. सम सेकंड गेस्ट टू एंटरटेन. गेस्ट का मतलब क्या निकलेगा? शायद किसी और की बॉडी को दफनाने के लिए, जिसको डेड बॉडी को राइटर ने गेस्ट कहा है. और एंटरटेन करने का मतलब है उसको एंटरटेनमेंट का मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे मतलब निकल रहा है दैट माई place would be disturbed, dug up again to take another body in my grave. ये आप समझ में आ गई होगी. और अगेन और एंटरटेन का भी राइम स्कीम मिल रहा है. फिर लास्ट में, फिर नेक्स्ट में लाइन में कवि ब्रैकेट में उस बात को लिख रहा है, और ध्यान से देखिए उसका मिसोजिनिस्ट नेचर, या ऐसे मान लीजिए कि औरतों के खिलाफ उसका जो एटीट्यूड है वो नजर आएगा. फॉर ग्रेव्स, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि ग्रेव्स हैव लर्न्ड. लगता है कब्र भी औरत के समान हो गई है. नाउ दिस इज अ मेटाफिजिकल एलिमेंट, बिकॉज ग्रेव हैज बीन, बिकॉज ग्रेव इज, आप अंदाजा लगाइए, ग्रेव में किसी को लेटा देते हैं, तो लेटने से रिलेटेड कवि ने जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसमें व्हेन अ गर्ल लाइज और अ वुमन लाइज, तो उससे उसको कंपेयर कर लिया है. कहता है लड़कियों की तरह ग्रेव्स भी, वुमन हेड का मतलब है लड़कियों का दिमाग आ गया लगता है ग्रेव्स में. टू बी टू मोर देन वन अ बेड, कि एक बेड में वो एक से ज्यादा लोगों को सुला लेती है. मतलब कि दे गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ फेथ इन मैरिज और से इन देयर लव वाव्स. मतलब प्यार की कसमों को तोड़ने वाली औरतें जैसे होती हैं, बेवफा होती हैं, फेथलेस होती हैं, ऐसे कब्र में भी एक आदमी को तो पहले लिटा रखा है, और उसको खोद के हटा के, उसकी हड्डियां हटा के दूसरे को लिटाने के लिए मेरी कब्र खोदी जा रही है. ये पूरा सीन समझ में आ गया. सो अगेन वी कैन से दैट देयर इज अ ड्रामेटिक एलिमेंट इन द पोएम, है ना. और मेटाफिजिकल एलिमेंट भी समझ में आ गया, दैट ही सरप्राइजेस अस, he becomes he makes us very restless, कि ये क्या हो रहा है कविता में. to be to more than one bed, समझ में आ गया. and he that digs it, और वो जो अंडरटेकर होगा, कब्र खोदने वाला जिसको बोलते हैं, जो खोदेगा उसको पता चलेगा. स्पाइस का मतलब जासूसी नहीं है, मतलब he will come to know, क्या, a bracelet of bright hair about the bone, उसको मिलेगा मेरी हड्डी के पास में एक चमकीले बालों का गुच्छा जो लपेटा हुआ है, जिसको कभी ब्रेसलेट कह रहा है. फिर से एक मेटाफिजिकल एलिमेंट आ गया कि बाल जो किसी के हड्डी के चारों तरफ लपेटे हुए, क्योंकि बाल गलते नहीं है मोस्टली, ठीक है, तो उसको कभी ब्रेसलेट कह रहा है. अब यहाँ पर एक क्रिश्चियन कस्टम है जो सभी स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है, तो दे जस्ट नो द हिंदी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एलिमेंट, क्रिश्चियन एलिमेंट इन द पोएम. इट हैपेंस इन क्रिश्चियन कल्चर कि दो प्रेमी है मान लो, और वो ये चाहते हैं कि हम कयामत के दिन मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक साथ डेथ हो. तो मान लीजिए कोई प्रेमी मर गया, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रेमिका से कहेगा कि मेरे अपना एक बाल मेरे बॉडी पे रख देना, या मेरी हड्डी से, या मेरे हाथ पे लपेट देना, उंगली में लपेट देना. तो ऐसा कहते हैं कि जिस किसी दूसरे का बॉडी पार्ट का कोई भी एलिमेंट वहां होगा ना, तो उसकी आत्मा भी कयामत के दिन बिल्कुल वहीं चली आएगी.
तो ये जो लाइन अब आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी बोन के चारों तरफ जो हड्डी, सॉरी, वो जो चमकीला बाल होगा, विल ही नॉट लेट अस अलोन। और फिर कवि ने खुद ही मान लिया कि दैट ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर, वो ब्रेसलेट नहीं है वो ब्राइट हेयर का, वो उसकी प्रेमिका है। और वो कह रहा है कि विल ही नॉट लेट अस अलोन, क्या यहाँ पे भी हमें अकेले नहीं रहने देंगे? मतलब जब हम जिंदा थे तब तो लोगों ने हमें डिस्टर्ब किया कि हमें मरना पड़ा अलग अलग। ओके, अब हम यहाँ पे कयामत के दिन मिलने के लिए जो हमने एक स्कीम सोची थी, हमें यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस होल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, रेस्टलेसनेस एंड वर्बल विट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है बच्चों, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जॉन डन को बोलते हैं मोनार्क ऑफ विट। इसका मतलब होता है, विट का मतलब होता है एक तेज दिमाग वाला, हाजिर जवाब आदमी, जो कहीं से कोई भी चीज को लिंक कर सकता है, जो यू ऑल नो दैट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पोएट। ठीक है, एंड थिंक दैट देयर अ लविंग कपल लाइज। और वो जो आदमी कब्र खोदेगा वो सोचेगा कि अरे यहाँ पे तो एक लविंग कपल लेटा हुआ है। आपको तो पता है कब्र में एक ही जने को लेटाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो उस बाल की वजह से जो कवि है वो कह रहा है कि लगता है उसको भी पता चल जाएगा कि अरे यहाँ तो एक लविंग कपल लेटा हुआ है। हु थॉट, और वो ऐसा सोचता या सोचा उसने, दैट दिस डिवाइस मतलब ये बाल जो ब्रेसलेट के तौर पे मेरे हाथ पे हड्डी पे लिपटे हुए मिलेंगे उस कब्र खोदने वाले को, माइट बी सम वे टू मेक देयर सोल्स। वो सोच लेगा कि अरे ये तो एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लगाया गया है इस बाल को, ताकि उनकी सोल्स मिल सके। कब? एट द लास्ट बिजी डे, मतलब डूम्स डे। बिजी डे क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उस दिन सारी आत्मा इधर से उधर आएंगी जाएंगी, ऐसा कुरान शरीफ में और बाइबल में लिखा हुआ है। जो जजमेंट का डे होगा उस दिन कयामत का दिन होगा, और भगवान सबका न्याय करेगा, और सब लोग इधर उधर, उनकी आत्माएं इधर उधर आ रही जा रही होंगी। ठीक है, मीट एट दिस ग्रेव, हम दोनों इस ग्रेव पर मिलते, एंड मेक अ लिटिल स्टे, हमको यहाँ मिलने कुछ समय के लिए हम रुकते। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क किस चीज को बता रहा है कि कौन सोच सकता था ऐसा? लगता है उसी ने सोचा होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की और आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो वाकई एक्चुअल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो हमें सरप्राइज कर रहा है। अब ये आप ध्यान से देखिए, इस लाइन में कितने, इस स्टैंजा में कितनी लाइंस थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का ये स्टैंजा था। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। इफ दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड, ये घटना अगर मान लो घटती है एक ऐसे समय में, एक ऐसे लैंड का मतलब देश में, वेयर मिस डिवोशन डथ कमांड, डथ मैंने डज, कि जहां पे सुपरस्टिशन अंधविश्वास की कमांड रहती है, यानी लोग अंधविश्वासी होते हैं, देन ही, तब वो, दैट डिग्स अस अप, जो हमें खोदेगा हमारे को। आप समझ रहे हो ना, बार बार वो अस कह रहा है, इसका मतलब है एक की बॉडी को खोदना, या एक कंकाल को, एक स्केलेटन को खोदना, या एक कब्र को खोदना। उसमें राइटर ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज कर रहा है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? कि जो उसने आइडिया, डिसिमिलर आइडियाज जो लिए हैं, कि भाई एक आदमी की हड्डियां और उसमें लिपटा बाल उसकी प्रेमिका मान ली, और फिर वो उसी आइडिया को लेकर पूरी पोएम में चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, कह रहा है कि वो क्या करेगा? आश्चर्यचकित हो जाएगा। विल ब्रिंग अस टू द बिशप, या तो वो बिशप का मतलब होता है बड़े पादरी के पास लेके जाएगा कि देखो देखो मुझे क्या मिला, एंड द किंग, या राजा के पास ले जाएगा, टू मेक अस रेलिक्स, ताकि हमें रेलिक बनाया जा सके, कि देखो देखो इतना प्यार करने वाले लोगों का। अभी रेलिक बनाने का जो यहाँ पे आइडिया है, दैट मेक्स द पोएम वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इट मीन्स द राइटर वांट्स टू कन्वे कि ये ऐसे समय में होगा जहां पर प्यार नाम की चीज खत्म हो चुकी होगी। जैसे आज का जमाना है, आज हम बहुत रेयरली सुनते हैं कि किसी को प्यार हो गया। जब हम छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमें कभी कभी दिख जाता था कि कोई 10th के भैया और दीदी, या जब हम कॉलेज में गए तो किसी एक लड़का लड़की के ऊपर पूरे कॉलेज के अंदर बात होती थी कि उन दोनों में कुछ है। और हम कोएड में पढ़ते थे, उसके बावजूद भी मोस्टली बातचीत करते थे, बट देन देयर वाज नो मिक्स अप ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। लेकिन अब आपको पता है, जब से जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, दे विल बी सरप्राइज्ड टू लिसन टू दिस, that though we were in co-education, but still there was no kind of boyfriend girlfriend kind of things were there. लेकिन अब हम देखते हैं इट्स वेरी वेरी कॉमन, ब्रेकअप नाम का जो वर्ड है। तो अब अगर कोई किसी के बारे में सुने कि उनको प्यार हो गया, एंड दे आर वेरी सीरियस एंड दे वांट टू डाई फॉर ईच अदर, या वो शादी करना चाहते हैं, तो थोड़ा अजीब लगेगा। आज से 20-25 साल बाद आप और देखेंगे, द पीपल विल बी वेरी स्मार्ट, मनी माइंडेड, एंड वो ऐसा कहेंगे कि अरे क्या होता है प्यार, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में अगर मान लीजिए किसी को पता चले कि देखो एक, जैसे मेरे नोन में एक
फ्रेंड है बच्चों, जिसको एक किसी से प्यार हुआ था और वो उस लड़की की शादी कहीं और कर दी पेरेंट्स ने, तो उस आदमी ने फिर जिंदगी भर शादी नहीं की। अभी वो हमारी एज का है और हम उस वक्त तो उसको बहुत मानते थे, लेकिन अब हम भी ये कहने लगे कि मूर्ख है वो, उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बट स्टिल ही सेज के प्यार एक से ही होता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे ये प्यार मोहब्बत की बातें कितनी अजीब लगने लगेंगी। इस तरह की बातों को हम सोचेंगे कि अरे ये तो मूर्ख लोग करते हैं। और आने वाले 100 सालों में तो अगर मान लीजिए लैला मजनू जैसे या ऐसे कोई हीर रांझा जैसे किस्से हमें सुनाई दे, तो हमें लगेगा कि अरे अरे ये तो कोई पुराने जमाने की एक रेयर चीज है। इसीलिए यहाँ पर ये आइडिया आया है कि कभी कहेगा कि अ टाइम विल कम एंड देयर विल बी नो लव एंड देन king and bishops, they will, bishops will make us relics, special things which can be saved, preserved, and can be shown to the coming generation in uh, these museums and all. Okay, then thou shalt be a Mary Magdalene. अब यहाँ पे मैरी मैगडलेन का किस्सा सबको मालूम होना चाहिए। ये एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसको क्राइस्ट ने लोग उसको मार रहे थे पत्थर, तो उसको बचाया था। फिर वो हमेशा क्राइस्ट की सेवा में लगी रही। समझ रहे, एक बाइबल से कैरेक्टर उठा लिया राइटर ने, कहता है कि तुम तो बन जाओगी मैरी मैगडलेन। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक जिसको बोलते हैं अपन पैराडॉक्स भी है और एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं। इसको लिख लीजिए एक और टर्म, एम्बिग्यूटी, AMBIGUITY। एम्बिग्यूटी और पैराडॉक्स होना पोएम को बहुत खूबसूरत बना देता है, उसकी कई कई मीनिंग निकलते हैं। मैरी मैगडलेन का एक मतलब है भी क्राइस्ट की प्रिय, या क्राइस्ट जो गॉड के सन थे उनके साथ रहने वाली, जिसको लास्ट में जरूर सैल्वेशन यानी मोक्ष मिला होगा। दूसरी तरफ वो उसकी बुराई भी कर रहा है कि तू तो बन जाएगी प्रोस्टिट्यूट, यानी लोग तुझे तो प्रोस्टिट्यूट की तरह लेंगे, एंड आई समथिंग एल्स देयर बाय, और मुझे तो वो कुछ भी समझ लेंगे नजदीक में तेरे पड़ा हुआ कुछ भी। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा एम्बिग्यूटी ली हुई लाइन है कि इनका कोई गहरा मीनिंग नहीं है। एक तरफ वो तारीफ भी कर रहा है, एक तरफ वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है। और फिर से वो एक्सटेंडेड मेटाफर है कि वो जो बाल है उसी को वो मैरी मैगडलेन कह रहा है, उसी को लोग अंदाजे लगाएंगे कहने का मतलब है, और अंधविश्वास करने लगेंगे। ऑल वुमेन शेल अडोर अस, फिर से सटायर वुमेन पे, कि क्योंकि अंधविश्वास की एज में फिर कहा है कि सारी औरतें हमारी तारीफ करेंगी, क्योंकि औरतों को राइटर ने इनडायरेक्ट वे में बोलते बोलते अचानक से ज्यादा अंधविश्वासी बना दिया है ना। एंड सम मेन और कुछ आदमी भी करेंगे। समझ रहे हो ना आप इस पोएम का मतलब? यहाँ पे इन दिस लाइन very casually the writer has tried to say that women are more superstitious. Okay, and since at such times, और क्योंकि यहाँ पे since का मतलब है क्योंकि ऐसे समय में miracles are sought, और जब लोग अंधविश्वासी होते हैं तो वो miracles चाहते हैं। sought मतलब चाहते होंगे उस जमाने में, ऐसा कह रहा है वो। seek की थर्ड फॉर्म होती है sought. Okay, I would have that age by this paper taught. तो काश मैं उस एज में होता तो मैं उस एज को, उस समय को, लोगों को, उन लोगों को इस पेपर यानी जिस पे मैं कविता लिख रहा हूं उसके थ्रू ये सिखा देता। What miracles we harmless lovers wrought. wrought का मतलब करना, बनाना, कि कितने हम हार्मलेस, मासूम, यहाँ पे हार्मलेस का मतलब है इनोसेंट लवर्स थे हम लोग, और हमने कितने मिरेकल्स किए प्यार के। अब क्या मिरेकल्स किए आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट, पहला मिरेकल, वी लव्ड वेल एंड फेथफुली। अब उस एज में तो, जब जिस एज में ये घटना घटेगी, which the writer has dramatically come up, जिससे उसने कविता स्टार्ट की कि ये जो मेरी कब्र है तब खोदी जाएगी, और एक जमाना ऐसा आएगा कि ना तो प्यार रहेगा ना फेथ रहेगा, तो लोग ताजुब करेंगे कि, और कहेंगे कि वाह 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 क्या बड़ा चमत्कार था कि दो प्रेमी जिन्होंने प्यार किया अच्छी तरह से, लव्ड वेल एंड फेथफुली, और ऊपर से फेथफुली, yet knew not what we loved nor why. ये अनकंडीशनल यहाँ पे आ गया, प्लेटोनिज्म, नियो प्लेटोनिज्म हल्का सा, मतलब बिना किसी कंडीशन के हम प्यार करते थे, हमें यही नहीं मालूम कि हम प्यार करते हैं क्यों करते हैं। अब ये प्यार अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। जैसे अपने बच्चे को सब प्यार करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी पड़ोसी की, किसी फ्रेंड की आपको वो पसंद है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, बदले में कुछ नहीं चाहते, तो आज के जमाने में तो उसको चमत्कारी कहेंगे ना, कि देखो क्योंकि हर चीज मतलब से होती है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू। आप यहां तक कि हमें एंजेलिक प्यार कह रहा है कभी, यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग बताता हूं, कि जिसको जेंडर का ही पता नहीं हो कि ये लड़का है मैं लड़की हूं,
या हम दोनों में एक अट्रैक्शन है, ये एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, अगर ये सब भी कवि को पता, मतलब कवि कहना चाह रहा है कि हम इतने इनोसेंट प्रेमी थे कि हमें यही नहीं मालूम है कि हम क्या प्यार कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि देन आवर गार्डियन एंजल्स डू, कहता है केवल हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं उन्हीं को पता चलता था। गार्डियन एंजल्स का भी क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, ऐसे एंजल्स जो हमारे आसपास हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं, ठीक है। कहता है केवल हमारे गार्डियन एंजल्स को ही पता होता था कि हम कौन है। कमिंग एंड गोइंग, हम आते जाते, वी परचांस माइट किस, कभी किस करते, शायद करते होंगे, हमें मालूम भी नहीं है, बट नॉट बिटवीन दोज मील्स। यहाँ पे मील्स का मतलब खाना है, कि मतलब जब हम लोग उठते बैठते खाना वाना खाते उस वक्त भी हम किस नहीं करते। कहने का मतलब है हम बॉडी टच से दूर रहते, इसका ये मतलब है। फिर लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, आवर हैंड्स नेवर टच द सील्स which nature injured by late laws sets free। दो लाइन सबसे कठिन लगती है, टफ लगती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे सील्स का मतलब लिख लीजिए सेक्सुअल ऑर्गन्स, यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस आ रहा है। जो नेचर ने, अब ध्यान से देखिए ये विच नेचर, जो नेचर ने सेट्स फ्री, ये जो लाइन है ना, इंजर्ड बाय लेट लॉ, इसको आप ब्रैकेट में रखिए एक बार के लिए। तो आप इसको इस तरह पढ़िए कि आवर हैंड्स मतलब हमारे हाथ कभी भी टच नहीं करते थे सेक्सुअल ऑर्गन्स को, जिनको नेचर ने फ्री किया था, फ्री बनाया था। अब यहाँ पे बाइबल की बात आ रही है कि एडम और इव को नेचर ने जब क्रिएट किया, गॉड ने जब क्रिएट किया, आई एम सॉरी, एडम और इव को गॉड ने क्रिएट किया, नेचर ने नहीं किया, क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि उन्होंने जब गॉड ने हमें बनाया तब हमें बिल्कुल आजाद बनाया, फ्री विल देकर के। लेकिन बाद में जो घटनाएं घटी बाइबल पैराडाइज में, इंजर्ड बाय लेट लॉज, फिर भगवान ने जो कानून बना दिए कि नहीं तुमने क्या है कि इस दोनों लाइन में गहरा मीनिंग ये निकल रहा है कि एडम और एव बिना लस्ट के प्यार करते रहते थे गार्डन ऑफ ईडन में, द गार्डन ऑफ ईडन में, ठीक है। और तब उनको कोई पाप नहीं लगता था। लेकिन जब सेटन, जो भगवान का दुश्मन है, जिसको भगवान ने स्वर्ग से फेंक दिया था हेल में, भगवान से बदला लेने के लिए जब वो पैराडाइज में गया जहां पे एडम और इव रहते थे, उनको उसने जब समझाया और वो गॉड के खिलाफ जब उन्होंने उनको जब नॉलेज आ गई एप्पल खा के, जिसको द फ्रूट ऑफ नॉलेज बोलते हैं, इसका मतलब है लस्ट आ गई। आप कई लोगों को ये सारी बातें मालूम नहीं है, तो आप इस लेक्चर से सुने और समझे कि पूरा बाइबल पढ़ने पे ही पता चलता है कि एडम और एव सेटन के गार्डन ऑफ ईडन में आने से पहले सेक्स करते थे, लेकिन वो बिना लस्ट का सेक्स था, नेचुरल सेक्स था, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब बाद में सेटन ने उनको नॉलेज दे दिया, तब उसके बाद जो उन्होंने सेक्स किया, ऐसा कहा जाता है कि वो लस्ट था। लस्ट की वजह से गॉड को गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव को बाहर निकालना पड़ा। तो ये राइटर ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई प्रेमी प्रेमिका हो और वो बहुत नेचुरल तरीके से प्यार करते हो, उनको कोई कानून मत सिखाओ, कोई 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 उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाओ, जिससे उनका जो प्यार है वो इंजर्ड हो जाता है। ये कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को समझ में एक बार में नहीं आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, राइटर ये कहना चाह रहा है, the writer wants to convey a message that we were harmless lovers, we were innocent lovers, but when the difference of sexes were told to us, when, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि, या कईयों को मालूम होगा शायद, मैं नेगेटिव क्यों बोलूं, कि एडम और ईव को, एक्चुअली ईव को भड़काया था सेटन ने। सेटन ने ईव को कहा था कि वो जो गॉड्स हैं हेवन में रहते हैं, वो ये फल खाते हैं, इसलिए हर वक्त सेक्स करते हैं और एंजॉय करते हैं, तो तुमको उन्होंने वंचित कर रखा है, इसलिए तुम खा लो, तुमको ज्यादा मजा आएगा। तो फिर ईव जो है वो उसकी बातों में आती है और वो खुद खाती है, और जब वो खुद खाती है, इसका मतलब है खुद खाने के भी कई सारे मीनिंग निकलते हैं यहाँ पे, दैट शी बिकेम ओवर सेक्सुअल, फिल्ड विद लस्ट एंड विदाउट, क्योंकि देखो जो जानवर होते हैं ना, आप इसको समझो इस पॉइंट को, मैं थोड़ा, आई विल स्टे हियर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस वेल। क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये लेक्चर का आपको एक बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर दे रहा है, तो मैं ऑर्डिनरीली केवल हिंदी समझा के नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं समझाऊंगा कि आपको, आपने कोई ग्रंथ भी अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर आप शिव पुराण पढ़े या रामचरितमानस भी एटलीस्ट पढ़ लें, तो आपको बालकांड में या शुरुआत में रेफरेंस आता है कि शंकर और पार्वती का जब विवाह हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि शंकर भगवान जो है, उनकी पहली वाइफ थी भवानी, जिसका
जो दक्ष की कन्या थी, ठीक है ना, वो हवन कुंड में कूद गई और फिर भगवान ने पता है ना आपको, एक तो वो एक अलग किस्सा है। फिर दूसरी शादी उनकी पार्वती से हुई, लेकिन उससे पहले कामदेव को भस्म कर चुके थे शिव भगवान अपने तीसरा नेत्र खोल के, ठीक है। और फिर बाद में जब रति उनकी कामदेव की वाइफ रोई तो शंकर भगवान ने कहा कि ये जब कृष्ण के तौर पर जब भगवान जब दोबारा जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तो प्रद्युम्न के नाम से तुम्हारा पति दोबारा जीवित होगा। ये बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है कि जो शंकर पार्वती हैं ये लस्टलेस लव करते हैं, इनके बच्चे इनकी खुद की पैदाइश नहीं है। कार्तिकेय का थोड़ा इंटरनेट पे आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कार्तिकेय जो है विष्णु और शिव के की संतान है, ठीक है। और जो गणेश है आपको मालूम है कि वो पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए। तो और शिवलिंग जो है वो शंकर भगवान का लिंग नहीं है, वो एनर्जी का स्रोत माना जाता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर का लिंग, और वो जो योनि पार्वती की दिखाई जाती है वो हॉरिजॉन्टल एनर्जी का पुंज है। कविता थोड़ी टफ बन रही है, मैं चाहता हूं नॉलेज देना इसीलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जब तुम जाके देखोगे डिफरेंट रिलीजन्स में, तो यू विल फाइंड वन थिंग दैट इन मैरिज, जब हमारे यहाँ पे सतयुग में ऐसा माना जाता है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए एक बार वो लोग सेक्स करते थे, उसके बाद सारी उम्र बिना सेक्स के रहते थे। बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि बॉडी जो मिली है वो सेक्स के लिए नहीं मिली है। तो ये जो इंजर्ड बाय लेट लॉ है, मैं इसी को समझाने में लगा हुआ हूँ कि डोंट कंसीडर दैट योर ओनली हिंदुइज्म इज अ ग्रेट रिलीजन। in religion of all the worlds, whether it is Christianity or Islam, if you go and find there, the stories tell that mankind, ये जो हम बोलते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि जॉन डन एक बहुत विटी और बहुत नॉलेजेबल कवि थे। वो एक ही लाइन में बहुत कुछ गहराई लिख रहे हैं। अगर ये गहराइयां इतनी ज्यादा ना समझाई जाती हो तो ये पोएम्स क्यों रखी गई है सिलेबस में, जरा बताइए। केवल सिंपल सिंपल चीजों के लिए ये पोएम्स नहीं, इनमें बहुत गहराई है बच्चों। तो आप इसको पढ़ें, मनन करें, थोड़ा और डिटेल में इंटरनेट स्टडी करें। आपके घर में कोई ग्रंथ हो तो टाइम निकालिए, उसको पढ़िए कभी कभी। अगर आपको बड़े ऑफिसर्स बनना है, आपको कोई बड़े प्रोफेसर्स बनना है, ओनली देन। छोटी मोटी नॉलेज वाले लोग आसपास बहुत होते हैं जिनको किसी भी चीज की कोई गहरी नॉलेज नहीं होती। लेकिन इफ यू हैव सब्सक्राइब टू माई institutes, this channel either, or you have taken or bought my courses, it means you have shown your faith on me and I'm enlightening you. तो इंजर्ड बाय लेट लॉ क्लियर हो गया कि गॉड ने, जो क्रिश्चियन गॉड है, उसने जो कानून बनाया था एडम और इव का, उनको सेक्स की अनुमति दी थी लेकिन लस्ट की अनुमति नहीं दी थी। तो मैं बता रहा था कि जानवर है, आप कभी देखना वो सारे दिन सेक्स नहीं करते हैं, उनके एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो हीट में आते हैं, उस वक्त वो सेक्स करते हैं, उसके बाद बिना सेक्स के रहते हैं, इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। तो नेचर ने इंसान को भी ऐसा ही बनाया था। लेकिन इंसान को ये गलत फहमी हो गई है कि जब वो यंग होता है यानी जवान होता है, उसके बाद वो लगातार सेक्स करता रहे और एंजॉय करता रहे, तो वही जीवन है, उसको लस्ट कहा गया है। नेचुरली उसको केवल संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स करना चाहिए, क्योंकि वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म, कोई भी धर्म में चले जाइए, मानव देह, मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि भोग योनि के लिए। भोग योनि के लिए बाकी की सारी योनियां मानी गई हैं, ठीक है। तो अब ये आपको लाइन समझ में आ गई होंगी दोनों अच्छी तरह से। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा बोल के आपका टाइम लिया। These miracles we did, तो कहता है ये मिरेकल्स हमने किए। तो अब अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए कि जब नारद मुनि पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, जिसकी शादी के लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो उसने तो कामदेव को मार दिया, अब क्या करोगी शादी करके, मतलब सेक्स तो होगा नहीं। तो वो खुश हो जाती है कि अब तो मेरे को ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मुझे सेक्स के लिए शादी नहीं करनी। तो ये मिरेकल नहीं हो गया कि किसी लड़की को ये पता चले कि जिस लड़के से वो शादी कर रही है वो सेक्स करने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि आज तो ये मिरेकल ही माना जाएगा कि एक लड़का लड़की सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे की सोल को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। वेदर दे वुड बी एबल टू consummate their marriage or not. Okay, so that will be a miracle. But if you read scriptures and the world literature, you will come to know that yes, there were times, okay, where these kind of marriages were there. ठीक है, so these miracles were dead, but now, alas. पर दुख की बात है कि अब all measure and all language I should pass. कितनी गहरी लाइन है देखो, कि चाहे मैं कितने ही मापदंड अपना लूं, किसी भी लेवल में चला जाऊं, मेजर मतलब whatever I do
in all the languages of the world I pass, I should go across the languages. Should I tell what a miracle she was? क्या मैं बता सकता हूँ कि वो क्या miracle थी? मतलब कि a girl whom she was in love with never induced in him sexual passion, and that was a miracle that, you know, जो राइटर कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि वो एक मिरेकल अपने आप में मिरेकल थी. अगेन देयर इज अ एम्बिग्यूटी इन द लाइन. मिरेकल फ्रॉम द ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू, मिरेकल कि वो इतना प्यार करते थे कि वो कयामत के बाद भी मिलना चाहते. तो कयामत के बाद मिलना चाहने का मतलब क्या हो गया कि उनका जो लव था वो था sexless love, platonic love, unconditional love, love which does not want anything. तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी. बहुत कठिन कविता नहीं है, लेकिन इसको कठिन कई लोग कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूं. अगर स्टूडेंट्स को डिटेल नॉलेज नहीं है, सॉरी नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज नहीं है, तो उसको ये सारी बातें समझ में आना थोड़ी मुश्किल है. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच.